All right. So the name of the YouTube channel is Econ with Ahmed Sheikh. Ahmed Ahmad. Econ with Ahmed Sheikh. All right. चलें जी. All right, people. काम सख्त है, काम सीरियस हो गया. ठीक है, कल तो गपशप चल रही थी, आज गपशप का कोई टाइम नहीं. What was that? चलें जी. हेडिंग देते हैं प्यारी सी. We will try. Thank you. To define what economics is. We might fail to do so in this session, today's session. हो सकता है. वालेकुम अस्सलाम. हम कल पहुंचेंगे, कल हमें समझ आएगी इकोनॉमिक्स है क्या. आज हम शुरू करेंगे समझना और हमें आंसर मिलेगा कल. ठीक हो गया. चलें, लेट्स सी. व्हाट इज इकोनॉमिक्स? एनीवन? इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ इकोनॉमी. क्या बात. Studies about the wealth of the economy. Yes. Study of scarcity, more relevant, better. हाँ जी. The study of efficient allocation, we'll write this down, and utilization of scarce, yes, scarce, whatever you want to call it, resources that help us produce goods and services which in turn satisfy human needs and wants. Hanji. It is a study of efficient allocation and utilization of scarce resources that help us produce goods and services, which in turn satisfy human needs and wants. Hanji. समझ आ गया? आ गया? जबरदस्त. क्लास खत्म, छुट्टी जाएगा. कुछ समझ नहीं आया, अंडरलाइन करेंगे. हमें कुछ समझ नहीं आएगा until and unless we know what efficient means, until and unless we know what allocation means, until and unless what do we mean by utilization, what do we mean by scarce resources, what do we mean by goods, what do we mean by services, what do we mean by needs, and what do we mean by wants. Until and unless we understand what these things are, we won't be able to understand what economics actually is. तो शुरू करें समझना. Let's start. कहां से शुरू करें? How about resources? Resources से शुरू करें. Resources. चलें फिर, आ जाए. हेडिंग दे देंगे प्यारी से. Resources. हाँ जी. 2 years back, पाक स्टडीज इस्लामिया, पाक स्टडीज में ज्योग्राफी पढ़ी थी, रिसोर्सेज पढ़े थे. रिमेंबर? कुछ याद आ रहा है? Another name for resources is factors of production. याद आया? What are factors of production? ये तो टाइप्स हैं उसकी. है क्या? What is factor? Define them. क्या बात कर दी है, क्या बात कर दी है. बिजनेस में पढ़ा, राइट? Everything that helps firms produce other goods and services.
हर वो चीज which is helping us produce other goods and services is a resource for that firm, is a resource for that economy even. इसको मैक्रो लेवल पे भी देख सकते हैं कि एक इकोनॉमी के रिसोर्सेस क्या हैं, कि जो हर वो चीज जो उसे हर कोई और चीज बनाने में हेल्प कर रही. सेम गोज फॉर अ फर्म. Rubrix is a firm. Everything that is helping them produce this service. You're buying a service, this is a product. You're buying a product, right? बुक पर डे पैसे दे रहे या नहीं दे रहे? दे रहे. गुड. ठीक है. तो यू आर बाइंग अ सर्विस, और इस सर्विस को प्रोवाइड करने में everything that is helping us produce this service is a resource for Rubrix, is a resource for us. Do we understand this? अब इसको हमने डिवाइड कर लिया है. These are divided into 4 categories या 4 types, which are land, labor, capital, and enterprise. Land, labor, capital, and enterprise. हाँ जी. What is land? Land is जमीन, right? Wrong. Yes. आज से लैंड की डेफिनेशन आपके लिए चेंज हो गई. लैंड इज नॉट जस्ट द फिजिकल प्लेस वेयर यू, ऑब्वियसली फिजिकल एग्जिस्टेंस तो चाहिए जमीन की. आसमान में तो फर्म चल नहीं सकती, आसमान में बिठा के तो आपको नहीं पढ़ा सकते, या फैक्ट्री तो नहीं चल सकती. बट इट हैज अ मच मोर ब्रॉडर मीनिंग देन दैट. एंड व्हाट इज दैट? ऑल natural resources under, on, and above the earth's surface, the earth's surface, that help us produce other goods and services. Other goods and services. हर वो नेचुरल चीज, नेचुरल. नाउ दिस डेस्क इज नेचुरल, राइट? दरख्त से उतरा ये डेस्क, इसी तरह बना बनाया नहीं. ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है. व्हाट इज नेचुरल? जी, सारे फॉसिल फ्यूल्स डाल दें. ऑल फॉसिल फ्यूल्स. जी, ऑल मिनरल्स. व्हाट इज? ऑल एग्रीकल्चर. पूरा एग्रीकल्चर, पूरा लंबर, दरख्त, लकड़ी, lumber. And what is? Water, sunlight, if it is being utilized to produce other goods and services, etc. Do we understand? हर नेचुरल चीज जो हमें कुछ और चीज बनाने में हेल्प कर रही है, आज से वो हमारे लिए क्या है? लैंड है. Do we understand that? And obviously the physical existence of land. समझ आ गई? What is land? हर नेचुरल चीज जो हमें ये सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प कर रही है, एक फर्म, वो उस फर्म का लैंड है. Do we understand this? आसान है, मुश्किल? ये तो बहुत आसान है. सेकंड, लेबर या फिजिकल लेबर भी इसको कहा जाता है. व्हाट इज लेबर? क्या बात करते हो, ये मजदूर वाला लेबर नहीं है. एवरीवन फ्रॉम द जैनिटर टिल द सीईओ is a laborer. Elon Musk is also a laborer if he is working as a CEO. ठीक है? Anyone who's willing and able to work, नहीं, क्योंकि वो उस वक्त एम्प्लॉयड नहीं है ना, वो फिर हम उसमें बाद में देखेंगे. लेबर क्या है? लेबर की बहुत बेसिक सिंपल सी डेफिनेशन है. ऑल मेंटल
and physical efforts put in by human beings to produce other goods and services. So from the janitor till the CEO, everyone is a laborer from now onwards. Do we get it? ठीक है, इसमें सब आ गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ गए, सब कुछ आ गया. Then we have physical capital. When we say physical capital, थोड़ा सा डेफिनेशन बिजनेस से डिफरेंट हो जाता है. What is capital? Anyone? हाँ, एक चीज बताओ. Yes, perfect. ठीक है. Yes. बिजनेस में, अकाउंटिंग में कैपिटल विल बी फाइनेंस, मनी, इन्वेस्टमेंट. यहां पर नहीं लिखना वो. ठीक है. यस. व्हाट इज कैपिटल? व्हाट इज कैपिटल? ऑल man made goods and services, man made goods and services which help us produce other goods and services. Yes, man-made, man-made A2 production. Yes, perfectly fine. All goods and services which help us produce other goods and services. For example, man-made क्या है? ये देखेंगे अगर ये छोटा सा nail, if this nail wasn't here, तो ये board गिर जाता. So from the tiniest nail to the biggest turbine to Boeing 737, समझ रहे हैं? मशीनरी, गैजेट्स, लैपटॉप, ये टेबल, ये एसी, ये बिल्डिंग इन इटसेल्फ, समझ रहे? एवरीथिंग इज कैपिटल. ऑल मैनमेड. जो मैनमेड चीज नजर आ रही है, चेयर्स जिन पे आप बैठे, which is ये प्रोजेक्टर, everything that is helping us produce other goods and services, but which is man-made is capital, physical capital. फाइनेंस नहीं है ये. ठीक है, अकाउंटिंग बिजनेस वाला फाइनेंस नहीं है यहाँ पे. लेकिन एग्जाम्पल क्या है? टूल्स, मशीनरी, fixed buildings, fixtures, etc. Do we get it? आई बात समझ में? कैपिटल is different from the other three factors of production as it is produced by combining factors of production. इसकी एक यूनिक बात है. क्या? लैंड नेचुरल है, लेबर अगेन नेचुरल है, एंड एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्राइज, वो भी आगे हम पढ़ेंगे, अभी इंसानी है, वो भी नेचुरल है. एक चीज है जो सबसे यूनिक है. क्या? कैपिटल यूनिक है. क्यों? क्योंकि वो खुद मैनमेड है, तो वो खुद बनाया जा सकता है. डू वी अंडरस्टैंड दिस? बात समझ आई? आ जाए जी. नंबर 4. व्हाट इज दैट? Enterprise. Now before we go into enterprise, the word is entrepreneur. Latin का word है entrepreneur, लेकिन वो obviously English में we call it entrepreneur. ठीक है? Entrepreneur कौन बंदा है? Yes, and yes, दो चीजें. The person who has the following characteristics.
ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके which make him unique. The first one is risk taking ability. इलॉन मस्क ने अपना पैसा लगाया, अपना टाइम लगाया। हो सकता है स्पेसएक्स ना चलता, आजकल कोई अच्छे हालात भी नहीं हो, ठीक है, टेस्ला ना चलता। सिकंदर ने पैसा लगाया, टाइम लगाया, हो सकता है ना चलती क्या। They're taking a risk, not only financial risk, they're also investing their time in it, and it might fail. Could have, ठीक है, do we understand that? So there are people who are taking the risk. रिस्क उन्होंने लगाया क्योंकि पैसा उनका लगा और उनका टाइम लगा। Secondly, they manage and bring all other factors of production together against an idea to produce goods and services. He had the idea, वरना उसी पैसे से इलॉन मस्क कोई और रिसोर्सेज जोड़ के कुछ और बना लेता। ये कुर्सियां यहाँ खुद आ गई, टीचर भी खुद ही आ गए, बच्चे भी खुद ही आ गए, खुद ही आ गए। किसी ने सोचा कि यार क्यों ना एक ऐसी एकेडमी बनाई जाए जो सिर्फ ओ एन ए लेवल्स के लिए हो, उसमें ये हो, ये बच्चे आए, ऐसे ऐसे ये एकेडमी बने, इस जगह पे बने, ये लोग होंगे, इस तरह एडमिन चलाऊंगा, इस तरह सारा सेटअप बनाऊंगा। Do we understand this? He had basic idea to bring all these factors of production together, combine them, इसी पैसे से, इन्हीं रिसोर्सेज से एफएससी की एकेडमी खोल लेता, खोली जा सकती है ना, इसी पैसे से बच्चों का मॉन्टेसरी स्कूल खोल लेता। लेकिन ये उसका आइडिया था कि उसके अगेंस्ट ये लगा। तो बेसिकली हु इज ही इज द ओनर। देसी जुबान में ओनर, बट यू विल नेवर कॉल हिम दी, you will never say he's the owner, you would always say the person। definition क्या है? the person who has these two features। कौन से features? एक तो रिस्क ले रहा है और दूसरा मैनेजिंग ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बात समझ आई? these two skills of the entrepreneur are known as enterprise। और फिर वहां से वो मशहूर हुआ लफ्ज एंटरप्राइज का, और फिर उन्होंने बिजनेसेस को ही एंटरप्राइज कहना शुरू कर दिया। अहमद एंटरप्राइजेस, हुसैन एंटरप्राइजेस, ठीक है। Sorry, you're the only one I remember the name। you one of you is also Hussain, and you are Hassan Hussain, and you were Zayan Habib। गुलिस्तान, ये कोई नाम है बोलने वाला? गुलिस्तान, सॉरी माय बैड, गुलिस्तान, वाह। हाँ जी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? हर वो चीज जो हमें कोई और चीज बनाने में हेल्प कर रहा है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड मतलब जमीन है ना? नहीं, जमीन नहीं होती लैंड। ऑल नेचुरल रिसोर्सेस, सब कुछ। छली भी आएगी इसके अंदर, तली भी इसके अंदर आएगी, लकड़ी भी इसके अंदर आएगी, समझ रहे? लेबर, मजदूर, मजदूर नहीं होता लेबर, बस सिर्फ मजदूर होता है ना। और कौन होता है? हर बंदा जो अपना मेंटल और फिजिकल एफर्ट डाल रहा है, ही इज लेबर, ही इज द लेबर ऑफ दैट फर्म, ठीक है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? कैपिटल, पैसा, फाइनेंस, राइट? फाइनेंस नहीं होता, क्या होता है? फिजिकल कैपिटल की बात कर रहे हैं हम, हमेशा याद रखें। फिजिकल कैपिटल क्या है? ऑल मैन मेड रिसोर्स, गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच हेल्प अस प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। एंड एंटरप्राइज क्या है? एंटरप्रेन्योर की वो दो स्किल्स जो कि क्या है? रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड मैनेजिंग ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हिच हेल्प देम प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। सर
कैपिटल में ह्यूमन कैपिटल नहीं इंक्लूडेड? कैपिटल में नहीं, ह्यूमन कैपिटल इज लेबर। दैट ह्यूमन कैपिटल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज लेबर, वो लेबर में आएगा। ठीक है, चलेंगे। आपकी बुक में वो इस तरह लिखता है ह्यूमन कैपिटल, लेकिन वो वैसे लेबर का ही पार्ट होता है ह्यूमन कैपिटल। जी, व्हाट एल्स? सर इसमें फाइनेंस इंक्लूड है? नहीं, फाइनेंस इंक्लूडेड नहीं है। फाइनेंस बिल्कुल नहीं बोल। रिटर्न्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जी जनाब, लैंड ओनर को क्या मिलता है बदले में? रेंट। पैसे क्या मिलते हैं? रेंट। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। वेजेस या सैलरीज। कैपिटल पे रिटर्न क्या मिलता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। क्यों? आगे हम एक चीज पढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो वो हम उस वक्त समझेंगे कि व्हाई इंटरेस्ट। बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरेस्ट क्यों कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स कहती है कि अ बिजनेस विल बी कंडक्टेड if a firm will be run if the return is at least equal to the interest they could have earned by saving that money in the bank। बात समझ आई? मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, अकल क्या कहती है कि कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसका सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या होती है हमेशा? ऑल्टरनेट क्या है बेस्ट? कि वही पैसा बैंक में रख दें, वही पैसा बैंक में रख दें। तो कैपिटल खरीदने का, मशीनें खरीदने का और एक फैक्ट्री चलाने का मुझे क्या फायदा है, या एकेडमी चलाने का मुझे क्या फायदा है? मुझे ये फायदा है कि मुझे रिटर्न आ रहा है, और अगर वो रिटर्न इंटरेस्ट से ऊपर है सिर्फ तभी मैं ये करूंगा। अदरवाइज मैं पैसे बैंक में ना रख देता और सेव ना कर लेता अगर उससे कम कमा रहा हूं। आजकल पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट क्या है? 11%। तो इकोनॉमिक्स अज्यूम करती है कि ये बिजनेस अगर चलाया जा रहा है तो ये कम से कम 11% कमा रहा होगा, अदरवाइज इसको बंद हो जाना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि कैपिटल का रिटर्न एटलीस्ट उस इंटरेस्ट के बराबर होगा। इकोनॉमिक्स नहीं देखती कि आपका दादा का बिजनेस है और फैमिली बिजनेस है। इकोनॉमिक्स कहती है एट द मोमेंट, अभी इंटरेस्ट रेट क्या है पाकिस्तान का? 11%। इकोनॉमिक्स कहती है अगर आप 9% कमा रहे हैं आपका बिजनेस एनुअल, तो ऐसे बिजनेस को बंद कर दें और वो पैसा सारा बैंक में रख दें। आपको क्या रिटर्न मिलेगा? 11%, 11%। समझ आई? हेंस इसीलिए हम कहते हैं कि कैपिटल अगर आपने खरीद ली मशीनें तो एटलीस्ट यू आर अर्निंग दैट मच इंटरेस्ट। तो इसीलिए हम इसके कह रहे हैं कि इतना कम से कम कमा रहा होगा। एंड देन करेंगे इसको डिटेल में व्हेन वंस वी स्टडी व्हाट यू कॉल इट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड देन एंटरप्राइज को क्या मिलता है? एंटरप्राइज को इन रिटर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट मिलता है। जी जनाब, पांचवा तरीका पैसे कमाने का। पांचवा तरीका बता दें। पांचवा तरीका पैसा कमाने का। जी, देर इज नो फिफ्थ वे। देर इज नो फिफ्थ वे। है तो कभी चोरी है, डकैती है, डाका है, और यही है, भीख भीख मांग सकते हैं। जिंदगी में अगर पैसे कमाने, यू आर अरीशा, अरीशा, जिंदगी में पैसे कमाने हैं तो सिर्फ चार तरीकों से आप क्या? या तो आपकी प्रॉपर्टी शॉपर्टी रेंट पे दें। दूसरा, क्या करें? काम करें। कुछ भी नहीं है तो काम करें, सैलरी मिलेगी। तीसरा, बिजनेस करें कैपिटल और एटलीस्ट इंटरेस्ट जितना कमाएं या उससे ज्यादा कमाएं। और एंटरप्राइज खोले, बिजनेस करें और क्या कमाएं? प्रॉफिट कमाएं, मलिक रियाज की तरह पैसे कमाएं। डू वी अंडरस्टैंड दैट? इज दिस सर क्लियर? प्रॉफिट और इंटरेस्ट में क्या फर्क है? प्रॉफिट और इंटरेस्ट में क्या फर्क है? इसमें? प्रॉफिट और इंटरेस्ट में? प्रॉफिट इंटरेस्ट वो आपको मिल रहा है जो आप, इंटरेस्ट बेसिकली क्या है कि जो आप बैंक में रखते हैं, सेव करते हैं, जो आप सेव करते हैं उस पे आपको एक रिटर्न मिल रहा है। ठीक है? एंटरप्राइज जो वो बिजनेस कर रहा है उसको रिटर्न में प्रॉफिट मिल रहा है। कैपिटल जब आप मैनमेड चीजें लेते हैं, ठीक है,
गुड आप मशीनरी खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, उसके रिटर्न में हम कहते हैं कि आप उसको भी तो कोई रिटर्न मिल रहा होगा उस इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, उसको हम वैसे ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे जाके। वैसे प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो इंटरेस्ट है फिक्स्ड पेमेंट, और वो सिर्फ सेविंग पे मिलती है। इंटरेस्ट है फिक्स्ड पेमेंट अगेंस्ट सेविंग्स। तो प्रैक्टिकली इंटरेस्ट और प्रॉफिट में जमीन आसमान का फर्क है। ऑप्शन ही आपके पास ये, मेरे पास $10,000 है, मेरे पास दो लाइनें हैं इस पैसे से पैसा कमाने की। या तो मैं बिजनेस करूं, एंटरप्राइज खोलूं, एंटरप्राइज कमाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, प्रॉफिट। या फिर मैं सेव करूं। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जमीन आसमान का फर्क है इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इस सिनेरियो में हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि आपको कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट मिल रहा है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उतना एटलीस्ट आप कमा रहे होंगे। ठीक है, इस सेविंग के बदले आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। टू वी गेट इट? तो वैसे Yes. प्रैक्टिकल जमीन आसमान का फर्क है, वो उसके अगेंस्ट आपको प्रॉफिट मिल रहा है, और सेविंग के बदले अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट। आई बात समझ में? जी, what are we done with? We are done with one word that we tried to understand, and what was that? Resources. अभी सिर्फ resources हुआ है भाई, अभी तो बाकी कुछ होना है। आ जाइए जी, let's define goods and services. Goods and services. Goods, how do you define goods? Goods are tangible. What do we mean by tangible? You can touch them. Services are intangible. You cannot touch them. The services that the doctor, the physician is giving you cannot be touched. You can touch the medicine though. Medicine is a good. Doctor ने आपको क्या दिया? Doctor just gave you the advice कि ये कर ले, ये कर ले. You cannot touch that. आज जो आपने यहां से सीखा है, that is knowledge. You can touch your register. The register is a good, but you cannot touch the knowledge that I gave you today. ठीक है, वो तो आपने दिमाग में इंस्टॉल किया. You can touch the pen, you can touch the chair. These are all goods, but you cannot touch the banking services, the insurance services that insurance companies give me. Airline services दे रहे, you can touch the plane is a good, but you cannot touch the services जो वो उठा के आपको एक जगह से उधर ले गए. Do we understand this? ठीक है, अब यहां पे जब हम आ गए तो we need to make a bifurcation, जो कि बहुत जरूरी है. इस यूनिट के आखिरी चैप्टर है टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें हमने बहुत कुछ देखना है. ठीक है, लेकिन अभी हमें एक बाइफर्केशन करनी पड़ेगी. दैट इज प्री गुड्स वर्सेस इकोनॉमिक गुड्स. प्री गुड्स को हमें अभी देखना पड़ेगा. व्हाट आर प्री गुड्स? यस, यस, सबसे पहली चीज, एंड बोले बोले, नहीं नहीं, वो गुड्स जी. प्री गुड्स क्या है? दे आर नॉट produced by combining other factors of production. Again, अभी पढ़ा नहीं है हमने, अगली चीज वही पढ़नी है. They don't have an opportunity cost. What is this? We are just coming to it. They are abundant. Yeah, you can say they are not scarce.
They cannot be sold for a price. They cannot be sold for a price. Yes, this is also right. ठीक है, आते, they cannot be sold for a price. नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवल की तो तब बात आएगी ना जब आप प्राइस, आप ये इकोनॉमिक गुड बनेगा। अभी मैं आपको इसका जवाब देता हूं, ये क्या हो सकता है, क्या एग्जाम्पल, सनलाइट, the air we breathe। बात को समझें, सनलाइट अगर मेरे ऊपर गिर रही है थोड़ी सी, यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट? मसला कोई नहीं, आपके लिए कम हो रही है, यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट? सनलाइट बनी है किसी फैक्ट्री में बनी हुई है। इफ आई ब्रीथ एयर, अगर मैं सांस ले रहा हूं, यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट? एनीवन, डू यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट? अगर मैं जाके ये खूबसूरत नदी जो बह रही है इधर से थोड़ा सा पानी ले लेता हूं, ठीक है, सो वहां से रिवर दैट इज फ्लोइंग राइट नेक्स्ट टू अस, यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट? मसला प्रॉब्लम कुछ जा तो नहीं रहा। लेकिन अगर मैं आपका नेस्ले का पानी उठा के पी लेता हूं, देन यू एंड आई हैव अ प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज दैट प्रोडक्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज दैट प्रोडक्ट हैड एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने पैसे लगाए हैं और उस पैसे से आप करोड़ और चीजें भी खरीद सकते थे जो कि 30 रुपए के अंदर अंदर आ सकती थी। यू लॉस्ट ऑल दोज थिंग्स जो कि आप खरीद सकते थे, यू लॉस्ट द सेकंड बेस्ट थिंग जो आप खरीद सकते थे, तो आपने वो छोड़ी और ये बॉटल ली 30 रुपए लगा के, ठीक है, एंड 60 रुपए की बोतल। पुराने जमाने में जी रहा हूं, चले 60 रुपीज की, दे आर अबंडेंट। नेस्ले की बॉटल्स इन्फिनिट है, लिमिटेड है, तभी तो वो बेच पा रहे हैं। सनलाइट इन्फिनिट है, मेरे ऊपर गिर रही है, आपको क्या मसला है? आपका तो कुछ नहीं जा रहा। डू वी गेट दिस? तो ये तीन चीजें, ये बल्कि ये दो चीजें आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी हाँ, ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था, दिस वाज सो सिंपल, रिमेंबर, फ्री गुड्स एंड पब्लिक गुड्स, ये बहुत आसान था, ठीक है। ये अभी 2025 में आया, मई जून जिसका भी रिजल्ट आया, ठीक है, एएस में, ए2 में का, ए लेवल 8 नंबर का, यस 8 नंबर, free good and public goods, that's it. And majority, and it was so simple, and majority failed to even score 4 out of 8. This is the problem. Free goods, ठीक है, आएंगे, अभी हमने पब्लिक गुड्स किया, लेकिन वो बेसिकली था पब्लिक गुड्स पे, लेकिन इट स्टार्टेड ऑफ विद फ्री गुड्स एंड यू हैड टू डिफाइन फ्री गुड्स। सिर्फ क्या लिखना था? दे डोंट हैव एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सिर्फ ये लिखना था, दे आर नॉट कंबाइंड। इसमें से कुछ भी एक लिख देना, एक नंबर तो आ जाना, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी वाज अनएबल टू स्कोर इवन 8 मार्क को। करेंगे करेंगे, डोंट वरी, आएंगे इस पे। हाँ जी, व्हाट आर इकोनॉमिक गुड्स? दे आर प्रोड्यूस्ड by combining factors of production. They have an opportunity cost. They are scarce. They are scarce. They can be sold for a price. But not every economic good can be sold for a price. कोई भी एग्जांपल ले लो, गाड़ी ले लें, कर ले लें, ठीक है, सारे इकोनॉमिक गुड। आज के बाद भाइयों और बहनों, पूरे अगले 2 साल के लिए फ्री गुड्स का चैप्टर क्लोज। यू डोंट नो इट, आपने नहीं काट देना अपने नोट्स में, ठीक है। डू वी अंडरस्टैंड? अगर मैं डिमांड पढ़ा रहा हूं, कुछ भी पढ़ा रहा हूं, आई टॉक अबाउट अ गुड, आपने ये नहीं कहना लेकिन सर सनलाइट तो फ्री है, ठीक है। आज के बाद फ्री गुड्स का चैप्टर फॉर लाइफ क्लोज्ड। फ्री गुड्स का तो मसला ही नहीं है, मसला किसका है? ना इकोनॉमिक गुड्स का है।
आई बात समझ में ना, यू कैन गो टू अलास्का एंड लिव ऑफ द लैंड, वहां सब कुछ फ्री गुड, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां रहना है तो इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी और इकोनॉमिक गुड्स के साथ रोज आपको डील करना पड़ेगा। तो आज से फ्री गुड्स का चैप्टर क्लोज। तो एवरीथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इज इकोनॉमिक गुड्स। इधर व्हाट इज द टाइम दैट द क्लास एंड? 9:20। हो, अभी तो 9:15। 9:15। हाँ जी, डू वी गेट दिस? आएंगे पब्लिक गुड्स करेंगे, आएंगे आएंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे। हाँ जी, अभी तो इकोनॉमिक्स ही नहीं समझ आई हमें, अभी तो हम बहुत पीछे हैं। क्या चक्कर चल रहा है? नीड्स एंड वांट्स हो जाए, जल्दी से स्पीड मार दे, बच्चों वाली बात है, क्लास 2 का बच्चे को भी पता ही है। आपके जो पहली आंखें बंद करें और खोलें, जो आपको चीज नजर आ रही है वो इकोनॉमिक गुड है। इस पूरे इसमें हवा के अलावा आपके इर्द गिर्द हर चीज, ये शीशे जो लगे हैं ये भी इकोनॉमिक गुड है, कहीं बने हैं, किसी ने बेचे हैं, लिमिटेड है। ये प्रोजेक्टर भी इकोनॉमिक गुड है, ये बिल्डिंग इन इटसेल्फ इकोनॉमिक गुड है। नीड्स, goods and services without which one cannot survive. Goods and services without which one cannot survive. Example, food, clothing, shelter. उर्दू करें इसकी क्या बनता है? रोटी कपड़ा मकान। भुट्टो वॉज अ स्मार्ट मैन, उसने यहां से लिया था ये स्लोगन। ठीक है, आई बात समझ में? फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। हैविंग सेड दैट, नया जो लिटरेचर है इकोनॉमिक्स का उसमें नीड्स की डेफिनेशन इवॉल्व हो रही है। एनरॉन was a company which supplied electricity, a private company. 2014 में, 13 में, 12 में, I don't really remember, एक ब्लैकआउट हुआ था, बिजली चली गई थी किसी फॉल्ट की वजह से न्यूयॉर्क में। और गोरा तो सोच भी नहीं सकता कि बिजली नाम की चीज जा सकती है। गोरे पागल हो गए, पता नहीं कितने मर्डर्स, कितनी लूटिंग और क्या उन्होंने तबाही मचा दी। 14 घंटे के लिए बिजली गई, ठीक है। तो नीड्स इवॉल्व हो रही, नीड्स आर इवॉल्विंग, ठीक है। माय ब्रदर लिव्स इन कनाडा, एडमिंटन, ठीक है। -42 डिग्री सेल्सियस, नॉट फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस तक जाता है, -42, ठीक है। आई आस्क्ड हिम कि बिजली गई है कभी? उसने कहा था एक दफा गई थी, उन्होंने 6 महीने पहले अनाउंस किया कि एक संडे आएगा उसमें 3 घंटे के लिए बिजली जाएगी, और उन्होंने 6 महीने से, कहता है, दिमाग खा लिया, बता बता के कि दोपहर को बिजली जानी है, करते करते करते, एंड देन दैट डे केम, और कहता है 40 मिनट्स के लिए बिजली गई थी दोपहर को, दैट्स इट, ठीक। और एक आप है, बिजली आ रही है जा रही है, ठीक है। तो नीड्स आर ऑल्सो इवॉल्विंग। वॉन्ट्स, all goods and services other than needs. It's a need to travel. बुगाटी में आना आपकी want है। Do we get it? नहीं भाई, हम तो करीब पहुंच गए, क्या बात है। हेडिंग दे दे प्यारी से। एक मसला आ गया छोटा सा, वो मसला क्या है? बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जी जनाब, व्हाट इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इवन नीड्स भी इवॉल्व हो रही है। नीड्स एंड वांट्स, बेसिकली वांट्स ही होता है हमेशा, लेकिन नीड्स भी लिख सकते हैं। नीड्स एंड वांट्स आर unlimited and resources are limited. Why is this a problem? बहुत बच्चों वाली बात है, लेकिन let me explain it. हाँ जी, बेशक ये डब्बे जो अब मैं बनाने लगा हूं ये ना बने, चलिए वो बन ही नहीं रहा।
ये बेशक ना बनाएं, इसको सिर्फ समझ लें, या बनाने हैं तो बना लें। What satisfies goods and services? What satisfies your needs and wants? Money. ये 1000 रुपया ले लो, कल वापस करते हैं, कुछ करना नहीं है इससे। हो जाएगी सेटिस्फैक्शन। आपको 1000 रुपया नहीं सेटिस्फाई कर रहा, आपको 1000 रुपए का जो मील आपने खाना है वो सेटिस्फाई कर रहा। आपको 70 लाख नहीं सेटिस्फाई करते, करोड़ रुपया नहीं सेटिस्फाई करता, करोड़ रुपए की हैवल सेटिस्फाई करते। आपको 4 लाख नहीं सेटिस्फाई करता, 4 लाख का आईफोन सेटिस्फाई करता। मैं आपको दे देता हूं 10 करोड़, ठीक है, खर्च नहीं करना, तो व्हाट गुड एट दैट 10 करोड़ इज फॉर यू। मनी हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, फिर वो आपके किस काम आएगा, इस्तेमाल नहीं करना। कागज के काम, कागज भी फजूल सा कागज है वो, ठीक है, वो पाब्लो एस्कोबार की तरह जला सकते हैं आप, आग शाग सेक सकते हैं, उसके अलावा और कोई चक्कर नहीं, ठीक है। आई बात समझ में? तो व्हाट सैटिस्फाइज योर नीड्स एंड वांट्स? Needs and wants are satisfied by goods and services. Goods and services आपकी needs and wants satisfy करती हैं। Do we get it? अब मसला क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए अभी बात हुई है, क्या चाहिए? मनी तो नहीं चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। क्या चाहिए? रिसोर्सेज। छोटे से छोटा एंटरप्राइज, छोटे से छोटा फर्म, छोटे से छोटी बिजनेस इन चारों चीजों के अलावा नहीं चल सकता। बहुत हार्डली यू कैन थिंक ऑफ जो 3 से चल जाए। रेडी लगा लें, छोटी सी चने वाली रेडी लगाएं, लगा लेते हैं। लैंड चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज, क्या वो रेत नहीं, चने, चने इटसेल्फ, ठीक है। लेबर चाहिए, या तो खुद चलानी पड़ेगी लेबर बन के, या कोई हायर करना पड़ेगा बंदा। कैपिटल चाहिए, रेडी, वो जिसमें गर्म करेंगे, वो पैकेट्स जिसमें देंगे। एंटरप्राइज चाहिए, रिस्क है, 50-60 हजार, बल्कि मेरा तो ख्याल से लाख रुपए की रेडी आएगी, ठीक है, टाइम भी लगेगा, पैसे भी लगेंगे। मेक सेंस? कैन यू थिंक ऑफ एनी बिजनेस जो इन चारों के अलावा हो सकता है? तो गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए क्या चाहिए हमें भाई? वी नीड रिसोर्सेज। We need resources for production of goods and services. We need factors of production. Now, here is the problem. What is the problem? Resources are limited. They are they? Let's talk about it. Discuss कर लेते हैं, हो सकता है ना हो limited. ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। Land limited नहीं limited? Limited है। Oil खत्म होना है, ठीक है, गैस खत्म कर दी है हमने, सुई गैस इस यूज कर करके, ठीक है। आई बात समझ में? जमीन भी लिमिटेड है, हर जगह तो नहीं हो सकता। डू वी गेट इट? तो लैंड लिमिटेड, लेबर, पूरी दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं। कैपिटल, मैनमेड चीजें, लिमिटेड। कुर्सियां अनलिमिटेड है, लिमिटेड है। अनलिमिटेड कैसे? हर चीज पे हाथ सर ला रही हैं, कुर्सियां नहीं, लिमिटेड या लिमिटेड है? लिमिटेड है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? Enterprise, again 8 billion people in the world, so there are only 8 billion entrepreneurs। अगर सारे entrepreneurs बन गए, समझ आई बात की? तो agreed, resources are limited, that means उससे जो goods and services बनेंगे वो भी क्या है? लेकिन एक मसला है छोटा सा, फरारी चाहिए, लैम्बोर्गिनी चाहिए, मुझे भी चाहिए, तुम्हें चाहिए, इसको भी चाहिए, ठीक है। ये मसला नहीं बन गया? ये क्या मसला है? नीड्स एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। नीड्स कैसे लिमिटेड हो सकती? मोस्टली हो सकती है, यस, मोस्टली हो सकती है। नीड्स आता नहीं है वैसे, इट्स ऑलवेज वांट्स आर लिमिटेड। लेकिन वो, रिमेंबर आई टोल्ड यू के वॉल बोरिंग, पीपल इन नेचर आर लस्टफुल, ठीक है। अगर आपका बस चले तो आप सब कुछ, पूरी वेल्थ दुनिया की अपने घर ले आए, खाना भी ले आए, घर भी ले आए। मेरा तो दिल करेगा अगर मेरे पास अनलिमिटेड पैसा आ जाए कि मेरा घर हो तकरीबन 400 एकड़ पे हो, और किधर हो? मार्गला हिल्स की टॉप पे, पूरे मेरे, बल्कि नीचे भी कभी लैंड भी हो, फ्लैट, इस्लामाबाद भी मेरा हो, ठीक है। नीड्स इवॉल्व हो गई ना? हाँ,
हाँ हाँ, नीड्स नीड्स लिमिटेड हैं, कहा जा सकता है। नीड्स को आप अगर काटना चाहते हैं काट लें, लेकिन नीड्स एंड वांट्स दोनों, ठीक है, इवॉल्व होती रहती नीड्स। लस्टफुल नेचर है ना। डू वी गेट दिस? तो ये तो मसला हो गया। वो क्या है उर्दू का मुहावरा, एक अनार 100 बीमार। ये तो गड़बड़ हो गई भाई। हर बंदे को हर चीज चाहिए, लेकिन इतनी चीजें है ही नहीं। क्या करें? कल इसका सोल्यूशन निकालते हैं, कल इसको सोचते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। डू वी गेट इट? चले, सी यू टुमारो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। इस बात को यहीं से कंटिन्यू किया